So let us start with the first unit, that is principles of management. When we talk about principles of management, it was actually Henry Fayol, who was born in 1841, and Henry Fayol gave a classical theory of management. So it is Henry Fayol who gave 14 principles of management in his book that was on general and industrial management in 1916. So we will be discussing those 14 principles of management today. But before we proceed to the principles of management, let me recap what management actually means. There are various definitions for management. Many social scientists have defined management in their own way. But some definitions which have got a universal acceptance, like I will quote Mary Parker Follett, who said that management is the art of getting things done through other people. Management is the art of getting things done through other people. Okay, so this is how management has been defined by Mary Parker. Similarly, there are some who have said that management is actually all about what a manager does in a formal organization. किसी भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो कुछ भी एक मैनेजर करता है वही मैनेजमेंट है. So this is another opinion about the definition of management. So simply, any manager, what he is actually doing in a formal organization, he is performing some functions. And the main functions of any manager are planning, organizing, leading, and controlling. These are the main functions of any manager in any organization. Although there are some other functions also which a manager performs in a formal organization, but planning, organizing, leading, and controlling is what almost every manager does in a formal organization. Now, coming about the importance of management, why actually management is required in an organization. Actually, in the absence of management, what will happen? There will be anarchy in the organization. You know what anarchy means? Anarchy means when there is no control at any particular point. So every person will do what he wants to do. So that may lead to chaos in the organization. So that is why there is a requirement of a proper management in any organization. And the significance of management is easily reflected by Henry Fayol's principles of management. Now, what are the principles of management as mentioned by Henry Fayol? They are division of work. Now, what actually division of work means? According to this principle, the whole work is divided into small tasks. क्योंकि जो भी काम है
उसको छोटे छोटे टास्क्स में डिवाइड किया जाता है, तो उसे कहते हैं डिवीजन ऑफ वर्क. Then what happens? Then the specialization of the workforce according to the skills of a person, creating specific personal and professional development are required to perform a particular task. Then the workforce which is available in the organization, then their skills are taken into consideration, because different people working in the organization in different capacities have different skills. So then it is seen that which particular skill is required to perform which particular task, and accordingly such tasks are allocated, and that is possible when there is division of work. ये पहला प्रिंसिपल हेनरी फायल ने दिया, डिवीजन ऑफ वर्क. जो भी काम है उसे छोटे छोटे टास्क्स में डिवाइड किया जाता है. तो उसके बाद दूसरा प्रिंसिपल जो है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो उसमें ये है कि हर किसी लेवल पे अथॉरिटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है. So this is the issue of commands followed by responsibility for their consequences. Because whenever any person in the organization is bestowed with some authority, authority means the right of a superior to give or enhance order to his subordinates. So with virtue of authority, a person can issue orders to his subordinates. So that authority should be bestowed with a person in the organization, so that he is able to issue orders pertaining to the conduct of the day-to-day activities of the business. And then responsibility, because when there is authority, there comes responsibility. To be responsible in making use of that authority, have an obligation for performance within the organization. So then there is another principle as laid by Henry Fayol, that is discipline. Discipline actually means proper conduct, obedience in relation to the respect of authority. So when in an organization there has been bestowed any authority, then that authority is to be respected, and that respect comes when there is discipline. Suppose जो order issue किया जाता है उसको फिर follow करना है, उसको फॉलो करने में ओबीडियंस होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स में. तो वो चीज़ें ज़रूरी हैं एक अच्छी मैनेजमेंट के लिए, एंड दैट इज़ कॉल्ड डिसिप्लिन. देन देयर इज़ यूनिटी ऑफ कमांड. यूनिटी ऑफ कमांड जो है, दैट इज़ अनदर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, एंड इट स्टेट्स that each subordinate should receive orders under one group. ये मतलब ये है कि सपोज एक सबॉर्डिनेट है, उसे पता होनी चाहिए कि मेरा सुपीरियर कौन है, मुझे किसके ऑर्डर्स पे अमल करना है, मुझे किससे इंस्ट्रक्शंस हासिल करनी है, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि एक ही शख्स को बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दे. अगर एक ही शख्स को बहुत सारे लोग इंस्ट्रक्शंस देंगे तो क्या हो सकता है? व्हाट कैन हैपन?
अगर सपोज एक शख्स है और उसको एक से ज़्यादा ऊपर से ऑर्डर देते हैं, तो उसमें क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है उसमें? उसमें ये हो सकता है कि सपोज़ उसको एक ने ऑर्डर दिया कि आप कल वहाँ जाना और वो काम करना, और दूसरे ने उसको ऑर्डर दिया आप कल यहाँ ही रुकना और ये काम करना। और जब दो सुपीरियर से एक सबऑर्डिनेट को ऑर्डर्स आ जाएंगे और वो ऑर्डर्स कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, एक उसको बोलता है आप कल वहाँ जाना वो काम करना, दूसरा उसको कहता है आप कल यहाँ रहना और ये काम करना, तो क्या हो सकता है उसमें? You can unmute and you can reply. वो सर टाइम टेबल बना सकते हैं उसके लिए। मेरा मत उसको हाँ, दो काम करने हैं तो वो टाइम टेबल बना सकता है, लेकिन उसको एक सुपीरियर कहता है कल आप उधर जाना, सपोज जो श्रीनगर में है उसको बोलता है कल आप बारामूला जाना, ये काम करना है। दूसरा सुपीरियर उसको कहता है कि कल आप बडगाम जाना और ये काम करना, वो क्या करेगा आप? वो बारामूला जाए या बडगाम जाए? उसको कंफ्यूजन हो जाएगा, कियोस हो जाएगा, क्योंकि जब एक सबऑर्डिनेट को दो सुपीरियर से ऑर्डर्स आएंगे और वो ऑर्डर्स कभी एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे, सपोज यहाँ पे अगर दोनों कहते बारामूला जाना तो कंफ्यूजन नहीं था, लेकिन एक कहता है उसको बारामूला जाने के लिए, एक कहता है बडगाम जाने के लिए, यहाँ पे स्कोप है कंफ्यूजन की। तो ये कियोस और कंफ्यूजन हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में अगर यूनिटी ऑफ कमांड नहीं है। दैट इज़ वाई हेनरी फायल gave the principle of unity of command. Unity of command states that each subordinate should receive orders and be accountable to one and only one superior. तो यूनिटी ऑफ कमांड में एक सबऑर्डिनेट को एक सुपीरियर असाइन किया जाता है जो उसको ऑर्डर्स इशू कर सकता है। तो अब पता है कि उसको उसके अलावा और कोई ऑर्डर इशू नहीं करेगा, तो कन्फ्यूजन कियोस की गुंजाइश कम है। तो वो होता है यूनिटी ऑफ कमांड, राइट? तो उसी डायरेक्शन में ओके मैं आपको समझाऊंगा। सपोज फॉर एग्जांपल मे बी आप कल किसी टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं, ठीक है? तो आप एक ट्रैवल एजेंसी के साथ काम कर रहे हैं और आप उस ट्रैवल एजेंसी में एक ट्रैवल एग्जीक्यूटिव की हैसियत से काम कर रहे हैं, और अब आपको उस ट्रैवल एजेंसी को दो ग्रुप्स हैं, एक इनबाउंड ग्रुप है उनका जो इंग्लैंड से आया है, दूसरा इनबाउंड ग्रुप है उनका जो जर्मनी से आया है। तो अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी ऑफ कमांड नहीं है तो आपको, क्योंकि वहाँ पे बहुत मैनेजर्स भी हैं, एक मैनेजर आपको कहता है कि आप कल हमारा जो इंग्लैंड का ग्रुप है आप कल उनको एक्कम्पनी करना गुलमर्ग। आपको शाम को फ़ोन आता है या मैसेज आती है या ईमेल आता है, ईमेल में आपको एक मैनेजर ये डायरेक्शन देता है कि कल आप अपना प्रोग्राम जो हमारा इंग्लैंड का ग्रुप है फॉरेनर्स का, उनके साथ आप कल गुलमर्ग जाना। दूसरा ईमेल आता है आपको आपके दूसरे मैनेजर से, वो आपको कहते हैं कि कल आप प्रोग्राम रखना अपना जो हमारा जर्मनी का ग्रुप है उनके साथ आप कल जाएंगे सोनमर्ग। तो जब आपको ये दो ऑर्डर्स आ जाएंगे आप क्या करेंगे? अब आप गुलमर्ग जाएंगे या सोनमर्ग जाएंगे?
आप सोच लीजिए जैसे आप ट्रैवल एग्जीक्यूटिव हैं, आप ऐसी सूरत में क्या करेंगे, व्हाट यू विल डू इन दैट सिचुएशन। व्हाट यू विल डू इन दैट सिचुएशन। आप कुछ भी बताइए जो आपके माइंड में आता है। सिचुएशन आपको अंडरस्टैंड किया आपने सिचुएशन। आप एक ट्रैवल कंपनी में एज ए ट्रैवल एग्जीक्यूटिव काम कर रहे हैं। उस ट्रैवल कंपनी को 2 फॉरेन ग्रुप्स आए हैं। एक फॉरेनर्स का ग्रुप टूरिस्ट्स का जो है वो इंग्लैंड से आया है, दूसरा जो उसी कंपनी के थ्रू ग्रुप आया है वो आया है जर्मनी से। आपको शाम को मेल आता है, शबनम टुमारो यू विल गो and accompany the group of foreigners from England to गुलमर्ग। दूसरा आपको मेल आता है कि शबनम टुमारो, दूसरा मैनेजर से, you will tomorrow go and accompany the group of tourists from Germany to सनमर्ग। आप कहाँ जाएंगे, गुलमर्ग और सनमर्ग? या आप क्या करेंगे उस सिचुएशन? हाँ सर, माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा उस वक्त, वेरी, समझ नहीं आएगा हाँ, क्या करेंगे। उसमें डिस्टर्ब हो जाओगे आप, क्योंकि आपको 2 सुपीरियर से ऑर्डर्स आए हैं और आप सोचोगे अगर मैं सुपीरियर ए का ऑर्डर मानूं और गुलमर्ग जाऊं, कल को सुपीरियर बी बोलेगा मैंने तो आपको सनमर्ग जाने के लिए कहा था, आप क्यों नहीं गई। अगर मैं सनमर्ग जाऊं तो सुपीरियर ए बोलेगा मैंने तो आपको ऑर्डर दिया था गुलमर्ग जाने के लिए, आप क्यों नहीं गई। सो यू विल बी डिस्टर्ब्ड ऑब्वियसली, इजंट इट। तो इसीलिए ऐसी सिचुएशन ही ना आए जहाँ पे एक एम्प्लॉई डिस्टर्ब हो। हेनरी फॉयल ने एक प्रिंसिपल दिया जो हर किसी के लिए एप्लीकेबल है, हर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। तो यूनिटी ऑफ कमांड जो प्रिंसिपल है वो हमको ये सिखाता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप एक सबऑर्डिनेट को, एक ही सुपीरियर, उसको ये नहीं करना कि आप एक सबऑर्डिनेट को एक से ज़्यादा सुपीरियर्स रखे ऊपर से, ताकि ऐसा कंफ्यूजन न हो कि उसको किसी दूसरे से इंस्ट्रक्शंस आए। तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन में पहले से ही पता होता है, असाइन किया होता है एक एम्प्लॉय को कि आपको आपका सुपीरियर कौन है, आपके डायरेक्शंस कहाँ से आएंगे, किस शख्स से आएंगे, तो वो उसी शख्स की डायरेक्शंस को फॉलो करता है। ये होता है यूनिटी ऑफ कमांड। सपोज फॉर एग्जांपल कोई असिस्टेंट मैनेजर है, सपोज असिस्टेंट, इसमें आपको ऑर्गेनाइजेशनल हियरार्की जो होती है, जो हियरार्की होती है, सपोज हियरार्की में है जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर के बाद है मैनेजर, मैनेजर के बाद है असिस्टेंट मैनेजर। तो असिस्टेंट मैनेजर को जो डायरेक्शन आएगी वो आएगी मैनेजर से, जनरल मैनेजर से नहीं, क्योंकि असिस्टेंट मैनेजर का सुपीरियर है मैनेजर और मैनेजर का सुपीरियर है जनरल मैनेजर। तो इसमें जनरल मैनेजर को अगर इंस्ट्रक्शंस देनी है मैनेजर को देनी है, असिस्टेंट मैनेजर को नहीं, और वो इंस्ट्रक्शंस फिर असिस्टेंट मैनेजर पास ऑन करेगा ना, जनरल मैनेजर को मैनेजर को देना है, मैनेजर पास ऑन करेगा वो असिस्टेंट मैनेजर को। सो दिस इज एक्चुअली, दिस इज यूनिटी ऑफ कमांड, एंड इन यूनिटी ऑफ कमांड देयर इज द प्रिंसिपल दैट स्टेट्स subordinates should receive orders and be accountable to one and only one superior। तो उसमें अगर असिस्टेंट मैनेजर है उसको जो डायरेक्शंस आएगी वो आएगी मैनेजर से, ना कि जनरल मैनेजर से, क्योंकि जनरल मैनेजर से डायरेक्शंस आएगी मैनेजर को, और अगर वो डायरेक्शंस असिस्टेंट मैनेजर को पहुंचानी है तो वो उसको मैनेजर पहुंचाएगा। आपको समझ में आ गई ये बात? ओके, सो दिस इज यूनिटी ऑफ कमांड। तो इसी तरीके से, इसी के बेसिस पे एक और प्रिंसिपल है, दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो उसमें ये है कि जो भी एक्टिविटीज़ हैं जो रिलेटेड हैं वो एक ग्रुप में होनी चाहिए, और उसके लिए
एक्शन प्लान भी एक होना चाहिए। तो उसको कहते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। क्या कहते हैं? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के बेसिस पे ही आप देखते हैं जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो फिर अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग मतलब सपोज एक कंपनी है, एक डिपार्टमेंट है उसका ट्रैवल कंपनी में डोमेस्टिक टूरिज्म, तो उस डिवीजन में उस डिपार्टमेंट में खाली डोमेस्टिक टूरिस्ट्स के रिलेटेड बिजनेस होता है। दूसरा है इंटरनेशनल टूरिज्म, उसमें जो फॉरेन टूरिस्ट्स हैं, मतलब जहाँ पे कंट्री के बॉर्डर्स क्रॉस होते हैं, उस टाइप के टूरिज्म को देखा जाता है। फिर इंटरनेशनल में 2 डिविजन्स हो सकते हैं, इनबाउंड डिवीजन, आउटबाउंड डिवीजन। इनबाउंड डिविजन्स में जहाँ यहाँ बाहर के लोग इस कंट्री में आए, फॉरेन टूरिस्ट्स यहाँ पे आ जाए। आउटबाउंड में जहाँ हमारे सिटीजन्स, हमारे मुल्क के लोग बाहर की कंट्रीज़ को जाए देखने के लिए, टूर के लिए। तो ये जो है इसमें जो रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, क्योंकि या डॉक्यूमेंटेशन के लिए सपोज डिवीज़न अलग होगा जिसमें वो पासपोर्ट, वीज़ा, बाकी ट्रैवल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस किया जाता है, तो उसमें रिलेटेड एक्टिविटीज़ को एक ग्रुप के दायरे में लाया जाता है ताकि फंक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ एफिशिएंट हो जाए। तो दैट इज़ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। देन वी टॉक अबाउट सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू म्यूचुअल इंटरेस्ट। एक ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रिंसिपल ले डाउन किया गया है कि जो एक होता है दैट इज़ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। सपोज जो किसी शख्स का पर्सनल इंटरेस्ट होता है, सपोज ऑर्गेनाइजेशन में 50 लोग काम करते हैं या 20 लोग हैं या सब लोग हैं, कितने भी हैं, तो एक होता है जो किसी का पर्सनल इंटरेस्ट है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट उसे कहते हैं। दूसरा होता है जो म्यूचुअल इंटरेस्ट है, जो सबका, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है। तो मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट को पर्सनल इंटरेस्ट असाइड रखना चाहिए, क्योंकि उनको फोकस करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट पे, म्यूचुअल इंटरेस्ट पे, जिससे पूरी ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा हो, ना कि वो किसी पर्टिकुलर मेंबर का फ़ायदा देखे। तो दैट इज़ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू म्यूचुअल इंटरेस्ट। सपोज फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कोई जॉब करता है और वो जो है सपोज वो उसी एरिया को बिलोंग करता है, मे बी वो रहता है सपोज पुलवामा में, और ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑफिस है पुलवामा में, तो वो उसको रखते हैं उसी ऑफिस में, पुलवामा वाले ऑफिस में उसकी पोस्टिंग रखते हैं। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ये देखती है कि ये पुलवामा का है तो इसको पुलवामा में ही रखेंगे क्योंकि इसका नज़दीक है वहाँ पे घर, इसको वहाँ फ़ायदा है, घर के साथ हैं। लेकिन अगर उसके पुलवामा में रहने से ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो, मे बी सपोज वहाँ पे उसका घर नज़दीक है और उसके जो वहाँ पे नेबर्स हैं बाकी, उनकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन का काम में कुछ रुकावट आ सकती है क्योंकि वो उसको जानते हैं, ऑर्गेनाइजेशन सीक्रेट्स लूज हो सकते हैं, कुछ हो सकता है। तो ऑर्गेनाइजेशन को ये नहीं देखना है कि एक इंडिविजुअल का फ़ायदा क्या है, बल्कि उनको देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा किस में है। अगर उनको लगे कि ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा इसमें है कि लोकल को वहाँ पे पोस्टिंग नहीं होनी चाहिए लोकल ऑफिस में, तो उनको उसका इंडिविजुअल बेनिफिट नहीं देखना है कि ये घर के पास है उसको वहीं पे रखेंगे, उनको वो देखना है जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ़ायदा है। दैट इज़ कॉल्ड सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू म्यूचुअल इंटरेस्ट।
कि म्यूचुअल इंटरेस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा है उस पर इंडिविजुअल इंटरेस्ट को, मतलब वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट से ज़्यादा अहम है. तो दैट इज़ अनदर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एज laid by Henry Fayol. Then there is seventh principle, that is remuneration. Remuneration क्या होता है? Remuneration होता है जब कोई काम करता है और उसे उस काम का मुआवजा मिलता है. That is काम करने का मुआवजा मिलता है. That is remuneration. तो हेनरी फायल ने कहा कि जो भी वर्कर ऑर्गेनाइजेशन में है, किसी भी लेवल पे, चाहे वो वर्कर है, मैनेजर है, क्या है, उसको सफिशेंटली पे करना चाहिए. जो उसका हक है उसके हिसाब से उसको पैसा देना चाहिए वो काम करने के लिए, क्योंकि उसी से वो मोटिवेटेड रहेगा काम करने के लिए और उसी से उसकी जो प्रोडक्टिविटी है काम करने में वो बढ़ जाएगी. तो इसलिए देयर शुड बी द मेथड्स बाय विच वन कैन see that what is the optimum remuneration payable for a particular job. तो वो देखना है और उसी हिसाब से एम्प्लॉई की सैलरी फिक्स करनी है, उसकी रिम्यूनरेशन फिक्स करनी है, ताकि वो मोटिवेटेड रहे अपने काम में, अपने जॉब में. तो उसे कहते हैं रिम्यूनरेशन. तो उसके बाद हम आते हैं सेंट्रलाइजेशन पे, द डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन. सेंट्रलाइजेशन क्या होता है कि जो मैनेजर्स होते हैं तो उनका जो पावर होता है डिसीजन मेकिंग में, कि वो कौन सा डिसीजन ले सकते हैं, किस लेवल पे कौन सा डिसीजन ले सकते हैं और कितना पावर एक मैनेजर को देना है, तो वो होती है डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन. तो ये सेंट्रलाइजेशन जो है इस पे फोकस करना है मैनेजमेंट को, कि किस लेवल पे कितनी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी रखनी है, कितना अमाउंट ऑफ पावर विल्ड करना है. तो ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द कंपनी, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द कंपनी इन विच इट इज़ ऑपरेटिंग, कौन सा बिजनेस है. तो उसी हिसाब से डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए. कुछ ऑर्गेनाइजेशंस डिमांड करती हैं ज़्यादा हाई डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस डिमांड करते हैं लो डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन, जिसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, जहाँ पे डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को शेयर किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वेरियस लेवल्स पे. और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में ये कंसंट्रेटेड रहती हैं पर्टिकुलर लेवल्स पे. तो द डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन ये भी एक प्रिंसिपल है हेनरी फायल का, कि ये देखना है मैनेजमेंट को कि किस लेवल पे किस हद तक पावर को सेंट्रलाइज रखना है. तो ये एसेस करना है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एंड अकॉर्डिंगली द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी हैविंग द सेंट्रलाइजेशन, हैविंग द डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन. तो उसके बाद एक और प्रिंसिपल आता है जिसे कहते हैं स्केलर चेन और लाइन ऑफ अथॉरिटी. तो स्केलर चेन या लाइन ऑफ अथॉरिटी जो है ये रेफ़र करता है कि जब नेचुरली जो फ्लो ऑफ ऑर्डर होता है वो फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू लोवेस्ट रैंक जाता है. तो स्केलर चेन हमको ये सिखाती है कि ये जो लाइन ऑफ अथॉरिटी है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इट शुड बी क्लियर फॉर ऑल मैनेजर्स, so that at all levels managers are aware about that. तो उसके लिए क्या बनती है, उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की बन जाती है. ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की हमने पहले भी डिस्कस की है.
अर्लियर सेमेस्टर्स में आपने देखा है हायरार्की, तो जहाँ आपने देखा है सपोज फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट की हायरार्की, हाउसकीपिंग की या होटल की हायरार्की, तो उसमें आपने देखा वहाँ पे मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं। जैसे कि सपोज़ अगर एक होटल है, अगर वहाँ पे सपोज़ 3, 4 या 5 डिपार्टमेंट्स हैं, तो मे बी ऊपर से एक होगा जनरल मैनेजर, फिर मे बी जनरल मैनेजर के नीचे होगा डिप्टी जनरल मैनेजर, फिर डिप्टी जनरल मैनेजर के नीचे होगा असिस्टेंट जनरल मैनेजर, और फिर असिस्टेंट जनरल मैनेजर के नीचे होगा मैनेजर। मे बी अगर डिपार्टमेंट्स अलग अलग हैं तो फ्रंट ऑफिस मैनेजर होगा, हाउसकीपिंग मैनेजर होगा, फूड एंड बेवरेज सर्विस मैनेजर होगा और शेफ़ होगा, क्योंकि फूड एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो मैनेजर होता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, उसे शेफ़ कहते हैं। तो फिर उनके अंडर फिर फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव्स आएंगे या बाकी सारे लोग आ जाएंगे। तो ये जो है, ये लाइन ऑफ अथॉरिटी जो है, ये स्केलर चेन जो है, ये क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए, बिकॉज दिस प्रिंसिपल सजेस्ट्स दैट देयर शुड बी अ क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, लिंकिंग ऑल एम्प्लॉयज़ एट ऑल लेवल्स। तो उससे क्या पता चलता है, जो हमने यूनिटी ऑफ कमांड पहले डिस्कस किया प्रिंसिपल, उससे हर किसी को पता रहता है कि मेरा जो इमीडिएट सुपरवाइज़र हैं, सुपीरियर हैं, वो कौन है, और मेरा जो सबऑर्डिनेट है वो कौन है। क्योंकि जब स्केलर चेन होती है तो असिस्टेंट जनरल मैनेजर को पता है कि मेरे जो सुपीरियर हैं वो है डिप्टी जनरल मैनेजर, और मेरा जो सबऑर्डिनेट है वो है मैनेजर। तो इससे एक क्लियर लाइन रहती है, लाइन ऑफ अथॉरिटी रहती है एक ऑर्गेनाइजेशन में, और ये फ्रॉम टॉप टू बॉटम बराबर डिफाइंड होता है। तो फिर उसके बाद आता है ऑर्डर। तो ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें रूल्स लेड होते हैं। जैसे इनफैक्ट एक कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन होती है, और उसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कंट्री के कानून बनते हैं। उसी तरीके से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका अपना सेट ऑफ रूल्स होता है, और उन्हीं रूल्स के अंडर जो ये लाइन ऑफ अथॉरिटी है, स्केलर चेन जो हमने अभी डिस्कस की, और जो उसमें मुख्तलिफ लोग हैं हायरार्की में, चाहे मैनेजर्स हैं, असिस्टेंट जनरल मैनेजर्स हैं, डीजीएम हैं, जनरल मैनेजर हैं, वो जो भी ऑर्डर्स इशू करते हैं वो अंडर रूल्स हैं, तो ताकि एक बाज़ाब्ता एक ऑर्डर रहे ऑर्गेनाइजेशन में। देन देयर इज़ अनदर प्रिंसिपल, दैट इज़ इक्विटी। इक्विटी क्या है? इक्विटी मीन्स जस्टिस, कि एम्प्लॉयज़ अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फॉयल, employees must be treated kindly and justice must be enacted to ensure a just workplace. Managers should be fair and impartial when dealing with employees, giving equal attention towards all employees. So, in this principle, Henry Fayol states that there should be impartiality, objectivity. Objectivity means कि किसी को मतलब राय नहीं करनी है on the basis of religion, on the basis of caste, on the basis of race, on the basis of any other aspect. ये नहीं कि ये मैनेजर बोलेगा चलो ये मेरे रिलीजन को बिलोंग करता है, इसको थोड़ा फ़ायदा पहुंचाओ। नहीं, इक्विटी मीन्स कि आपको हर किसी के साथ एक ही सलूक करना है। आपको इम्पार्शली कोई राय नहीं रखनी है, कोई राय नहीं रखनी है किसी के फेवर में, बल्कि इम्पार्शली न्यूट्रल आपको रहना है। आपको ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के अंदर जो हैं उसके तहत आपको बराबर इंसाफ देना है,
अपने एम्प्लॉयज़ के साथ। ये उसूल है, ये प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का, अगर कामयाब ऑर्गेनाइजेशन आपको बनानी है तो दैट इज़ इक्विटी। Then there is another principle, that is stability of tenure of personnel. तो उसमें यह है कि in this principle it is stated that to ensure the productivity of your employees, you must ensure a stability so that they may do their work smoothly. Suppose for example organization में transfers होते हैं, या आप मूव करते हैं, रिलोकेट करते हैं एक शख्स को दूसरी जगह, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, आप कर सकते हैं, रूल्स के अंडर है वो प्रोविज़न। लेकिन आपको ये इंश्योर करना है कि अगर आपने किसी एम्प्लॉई को किसी डिपार्टमेंट में किसी पोजीशन पे रखा तो आप उसको कुछ टाइम दे वहाँ पे उस पोजीशन पे, ताकि वो उस जॉब को अंडरस्टैंड करे प्रॉपरली और उसको अच्छी तरह से कर सके। ये नहीं करना है कि आपने सपोज आज उठाया एक एम्प्लॉई को रखा एक सेक्शन में, 4 दिन के बाद वहाँ से उठाया रखा दूसरे सेक्शन में, फिर कुछ दिन के बाद वहाँ से उठाया रखा तीसरे सेक्शन में। तो उससे क्या होगा, उससे उस एम्प्लॉई की प्रोडक्टिविटी को आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो सपोज़ वहाँ पे थोड़ा सा उसने अब हो गया था स्मूथली काम करने के लिए रेडी, आपने उसको वहाँ से उठाया दूसरी जगह लाया, तो उससे उसकी प्रोडक्टिविटी में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इसलिए टू एंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, यू मस्ट keep in focus that if you are putting an employee somewhere, give him some time so that he will be stable, and after that if you will feel that he is still not able to perform there, then you can relocate or transfer him to some other place. Otherwise, give him some time so that you ensure that he is stable and then see the productivity. क्योंकि आप अगर पहले दिन किसी को कहीं भेजते हैं तो पहले ही दिन वो नहीं कर सकता है वहाँ पे काम, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है वहाँ का जो वर्क कल्चर या वहाँ का जो काम करने का तरीका उसको अंडरस्टैंड करने में। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप अपने एम्प्लॉई को बाज़ाब्ता वो टाइम दे।